Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC CGL exam 2024 क्वेश्चन ऑफ 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 18 सितंबर यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस सेक्शन से रहने वाला और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला। जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन मिले डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम का लेवल पता चल सके कि कैसा आपका बढ़ रहा है या घट रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाई। तो इसका राइट आंसर आपका राजा राम मोहन रॉय जो कि हो जाएगा। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द आत्म सभा इन 1828. He founded the Brahmo Sabha, later the Brahmo Samaj. The Brahmo Samaj believed that God is the cause, the source of all that nature, earth and heavens are all his creation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु होस्ट द फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे इन द स्टेट। तो द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड बाय द गवर्नर इन द स्टेट कैपिटल ऑन रिपब्लिक डे। तो आपका गवर्नर जो भी होगा स्टेट का वो फहराता है आपका। दिस सेरेमनी इज हेल्ड ऑन 26 जनवरी वाइल एट द नेशनल लेवल द प्रेसिडेंट होस्ट द फ्लैग एट द स्टेट लेजिस्लेचर इन दिल्ली ऑन दिस डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कॉल्ड। तो ऑप्शन में आपका विधानसभा, विधान परिषद, पार्लियामेंट और यूनाइटेड लेजिस्लेचर दिया गया था। तो आपका विधान परिषद जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द स्टेट हैज अ बाइकैमेरल लेजिस्लेचर consisting of two houses. The upper house is in the Vidhan Parishad, and the lower house is the Vidhan Sabha. The upper house of the state consists of not more than 1/3 of the total number of members of the state assembly and no case less than 40 members. In Jammu and Kashmir, the strength is only 36. The system of composition of the council is not final in the constitution. The final authority is given to the parliament of the union. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हेन वाज द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च। तो आपका बात कर लें आयुष्मान भारत योजना ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री जन आयोग योजना वाज लॉन्च ऑन 23 सितंबर 2018. द scheme aims to provide health insurance to the economically weaker section, under which cashless health insurance up to 5 lakh is provided to each family. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज नोन एज द उस्ताद ऑफ सितार यानी सितार मैजिस्ट्री इन इंडिया। तो आपका पंडित रविशंकर जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। रविशंकर इज नोन एज द उस्ताद ऑफ सितार इन इंडिया। ही वाज रिनोन्ड म्यूजिशियन एंड composer who was born in Varanasi in 1920 and died in 2012. Shankar was known for popularizing Indian classical music in the West and was a major influence of psychedelic rock music of 1916. He collaborated with many Western musicians, including George Harrison of the Beatles, and was awarded several prestigious awards in lifetime, including the Bharat Ratna, India's highest civilian honor. Shankar is considered one of the most important figures in the history of Indian classical music, and his legacy continues to influence musicians around the world. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड एज द मोर obligation of the all citizens to promote the spirit of patriotism and help maintain the unity of India. These duties set up in Part 4A of Constitution related to individual and the nation. The fundamental duties are 11. तो कौन कौन से आपका abide by the Constitution and respect the national flag and the national anthem. Adhere to ideal of the freedom struggle, defend the sovereignty and integrity of India, defend the country and render national service when called upon, have the spirit of common brotherhood, preserve composite culture, preserve the national environment, develop scientific temper, protect public property, strive for excellence, जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स गार्जियन टू सेंड देयर चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 12 years to the school.
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP ऑफ इंडिया आर द गाइडलाइंस और प्रिंसिपल गिवन टू द इंस्टीट्यूशन टू गवर्न इंडिया. दे आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पार्ट 3 की बात कर लें जो कि आपका आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स बीच आर right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to religious freedom, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. पार्ट 4 जो कि आपका आर्टिकल 52 to 151 है, टॉक्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका विच रिवर फ्लो इन द वेस्ट डायरेक्शन. तो माही एंड साबरमती जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा. द रिवर फ्लोइंग टुवर्ड द वेस्ट इंक्लूड नर्मदा एंड ताप्ती. बिसाइड लुनी, घाघर, माही एंड साबरमती रिवर, दिस रिवर मीट्स द नीड टू पीपल एट द लोकल लेवल एंड मर्ज इनटू द अरेबियन सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स. तो गीता फोगाट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा. गीता फोगाट वाज द फर्स्ट फीमेल रेसलर फ्रॉम इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द 2012 लंदन ओलंपिक्स. गीता फोगाट won India first gold medal in 2010 Commonwealth Games. Geeta Phogat is a famous Indian female freestyle wrestler. She was born on 15 December 1988 in the Valali village in Bhiwani district of Haryana. Geeta created history by winning a gold medal at 2010 Commonwealth Games, making her first Indian female wrestler to do. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका हु वेयर द मेन लीडर ऑफ संथाल रेवेनियन. तो सिद्धू जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा. सिद्धू मुर्मू एंड कन्हू मुर्मू वेयर ब्रदर्स एंड वेयर द लीडर्स ऑफ संथाल रेवेनियन डेट स्टार्टेड इन 1855. द संथाल रेवेलियंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन प्रेजेंट डे झारखंड एंड बंगाल इन ईस्टर्न इंडिया अगेंस्ट बोथ द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर एंड द करप्ट जमींदारी सिस्टम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर. तो आपका मेसोस्फेयर जो कि राइट आंसर हो जाएगा. द मेसोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ अमॉन्ग द ऑल देज ऑप्शन. द एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर अमॉन्ग द लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर. The mesosphere is the third layer of the atmosphere, directly above the stratosphere and directly below the exosphere. In the mesosphere, temperature decrease as altitude increase. The asthenosphere is the highly viscous and mechanically weak and the malleable region of the Earth's upper mantle. And the lithosphere is the rocky outer portion of the Earth, and troposphere is the lowest layer of the Earth atmosphere. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट. तो मनी सप्लाई की बात कर ले तो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट जो कि आपका है. तो स्टॉक जो कि राइट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट है आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन हेरोडोमर मॉडल. तो आपका इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था. तो चलिए कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया इट वाज लॉन्च फॉर the duration of 1951 to 56 under the leadership of Jawaharlal Nehru. It was based on the Herod-Domer model with a few modifications. Its main focus on the agriculture development of the country. This plan was successful and achieved a growth rate of 3.6%, more than its target of 2.1%. At the end of this plan, 5 IITs were set up in the country. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि what type of reaction will occur when silver chloride is exposed to sunlight. When silver chloride is exposed to sunlight, a reaction named the photolytic reaction occurs. On coming in the contact with the sunlight, silver chloride decomposes into silver and chlorine. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका हु वाज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश 2023. तो केशव प्रसाद मौर्य जो कि राइट आंसर हो जाएगा. वहीं और भी सभी राज्य के आपका जो कि दे दिया गया है कौन कौन उप मुख्यमंत्री थे. तो आप इसको PDF में रीड आउट कर लीजिएगा. बाकी यही इतने ही क्वेश्चन रहे जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो कि हमें अभी तक मिल पाए. बाकी और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उन्हें आपका डिस्कस क्या PDF में इसको शामिल कर देंगे. बाकी
PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सभी दिनों का, अभी तक जितने भी शिफ्टों का आपका हुआ है, ओनली GK GS का। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।